This is Kamlesh. He is a member of the Vishwa Hindu Parishad or VHP. He says he personally killed over 8 Muslims and burnt down many houses in the post-Godhra carnage. He says he did this to gain his Hindu identity, his self-respect. In Kamlesh's mind, 800 million Hindus are being threatened, terrorized by Muslims. In his eyes, India's Muslims are one homogeneous mass of 100 million. We're all the same. Each time he sees a Muslim, he thinks of 100 million of them. Kamlesh believes he is the savior of the Hindus. He says if he does not resort to these violent acts, then India will collapse. So he has to build the Hindu Rashtra, the Hindu nation. On February 27, 2002, coach number S6 of the Sabarmati Express was set on fire at Godhra in Gujarat. 58 passengers were burnt to death. It was alleged that Muslims were responsible for this terrible crime. Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat at that time. In the name of avenging Godhra, a bloodbath against the Muslims followed. There was murder, rape, loot, burning down of homes, workplaces, factories, property belonging to the Muslims. More than 2,000 Muslims lost their lives. The Rashtriya Swayamsevak Sangh or the RSS was founded in 1925. Its main objective is to establish the Hindu Rashtra or the Hindu nation. The ideology that they propagate is known as Hindutva. The Bharatiya Janata Party or the BJP, the political front of the RSS, holds power at the centre and also held power in Gujarat in February-March 2002 during the carnage. The RSS is supported in its activities by a vast network of more than 40 organizations. The RSS too describes itself as a cultural organization. Yet it is the brain and driving force of this hard-right Hindu brotherhood. The VHP and Bajrang Dal come into action whenever violence has to be openly deployed. For decades, the RSS has propagated in a systematic manner a negative campaign against Indian Muslims and Indian Christians. Gradually, this mass doctoring of lies and misinformation and a campaign of hatred has impacted on the subconscious of a significant section of Indians. In pursuit of its ambition to wrest political power, the minorities have become its punching bag. Communal riots have always been used by the RSS, BJP, VHP combined as a political tool. After the carnage in Gujarat, there have been several villages where the Muslims have not been allowed to return to their homes. They want a pure Hindu village. In the village of Dharmaj, there were only about 25 Muslim families. भाजपा का जो जोर रहा है, अभी ये दंगा फसाद हुआ, तो इसमें भाजपा का जोर ज़्यादा हुआ है. यही मुसलमान लोग जो रहते हैं, उसका घर जला डाला, उसका घर डिस्ट्रॉय किया और यहाँ से भगा दिया उसको. और फिर आना मत ऐसा हम लोगों ने उसको बोल दिया. उसका जो घर बार है, सभी के सभी, उसकी दुकान है, उसका जो धंधा भी है, और वो सब लोगों को सबका सब डिस्ट्रॉय कर दिया है. यहाँ पर कौन डिस्ट्रॉय किया? हम लोगों ने किया, यानी हिंदू लोग ने किया मुसलमान का, और सभी के सभी वो अपने अपने गांव चले गए. In Siswa, there are about 50 Muslim families in a total population of 5,000. Their homes and workplaces were looted and burnt down. पहले कितने मुसलमान लोग थे? पहले थे 20-25 आदमी थे, बस सब लोग चले गए. क्यों चले गए? क्यों चले गए वो तो पता नहीं है. घर का नुकसान तो हमारा बहुत हुआ है. 4 मकान, एक हमारी साली का मकान, यूँ करने 5 मकान तोड़ डाले हैं. ऊपर कुछ 2 मकान 3 मकान का तो कुछ भी रहा नहीं, ज़मीन दोस्त करे है. सिसवा का रहने वाला है, पहले से रहते हैं. सिसवा का रहने वाला, हमारी पास ज़मीन है, मिलकत है, सब है मेरे पास. सब एक गोधरा के कंपाउंड में ऐसा हुआ तो सब हमारा दुकान भी लूट गया उधर ही. अभी उधर ही जाते हैं, बैठने नहीं देते अंदर ही. In village after village, people claim the Godhra tragedy
as the one incident which provoked them to violence. उन्होंने देखा कि गोधराकांड में सब जिंदा लोगों को छोटे बच्चे अपने भाई बहनों को जिंदा जला दिया। और किसका कारण था वो सब बाहर निकला तो भाई अपने पाकिस्तानी लोग ही थे सब। यदि ऐसा करेगा, गोधराकांड जैसा करेगा तो इसका जवाब इसी प्रकार मिलेगा। Even today, the actual facts have not been established in Godhra. The forensic report indicates that the blast occurred from inside the compartment. इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो दंगा हुआ वो राजकीय है, उसके पीछे राजनीति है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी शासन में आने के बाद जितने भी बाई इलेक्शंस हुए, चाहे वो विधानसभा के हो चाहे संसद के हो, सभी में वो हार रहे थे। वहाँ भागे तो वहाँ भी मारे हमको, सब जगह घेर लिए थे हम लोगों को। तो बीच में हम लोग फंस गए ना, तो डाला केरोसिन हमने आग लगा दी थी। तो थोड़ी आंच कम हो गई ना, फिर हमारे ऊपर डीजल डाला था, टायर डाले थे, गुदरियाँ डाली थी, सब डाले थे मेरे ऊपर। फिर मेरा भाई हाथ में था, तो मेरा हाथ में से उसके छोकरे ने मेरा भाई हाथ में से छीन लिए थे, आग में फेंक दिए थे पटरी उतार के। तो 2 बहनें थी मेरी आंखों के सामने उन लोग को जला दिए। ये जो राइट्स हुआ वो क्वालिटेटिवली अर्लियर राइट्स से डिफरेंट है, इसीलिए कि इट वाज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली स्टेट, नॉट merely स्टेट connived at it, but it was completely state directed, state sponsored, state aided, whatever it is called. शराब पिलाई गई, पैसे दिए गए और ऐसा कहा कि आपको जो भी लूटना है वो लूट लो, जलाना है वो जला दो, पुलिस आपको छुएगी तक नहीं। तो इसका क्या मतलब होता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ही है ना टेररिज्म। यदि भाई भाई की तरह रहते हैं तो हम उनके लिए भी सर कटवाने को तैयार है। भाई भाई की तरह यहाँ रहे तो कोई हर्जा नहीं है। भारत और पाकिस्तान बना, हम तो चाहते हैं भारत पाकिस्तान एक हो जाए। जैसे 2 जर्मनी के 2 भाग हुए, आज एक हो गया, 2 वियतनाम एक हो सकते हैं, 2 कोरिया एक हो सकते हैं। तो ये तो अभी 50 साल की बात है। मुसलमान लोग हैं क्या इधर? नहीं, यहाँ के मुसलमान नहीं है। यहाँ पर पहले इधर 300 लोग थे, अभी नहीं है। The VHP, with its emphasis on violence, was established in 1964. The VHP has 9,000 units and 3.7 lakh members in Gujarat. That is in half of Gujarat's 18,600 villages. हाँ, विश्व हिंदू परिषद जो है वो इस राष्ट्र का चिंतन करने वाले हैं। जो इसकी मूल संस्कृति है यहाँ की, जो 85% है, उस पर उसका वो 85% का प्रतिनिधित्व करती है। और जो मूल संस्कृति जो हजारों सालों से चली आ रही है, लाखों सालों से, तो वो संस्कृति पर आज वज्राघात हो रहे हैं। देखिए, यहाँ विश्व हिंदू परिषद का प्रभाव मैं मानता हूँ कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं मानूं तब तो ये कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पर जो धमाल किया उसके अंदर जिंदा लोग, मुसलमान को जिंदा जला दिया हमने। The VHP established the Dharm Sansad in 1984. The RSS insists that the Dharm Sansad, consisting of Hindu priests, is the highest supreme body of Hindus. With close bonds between the institution of the temple and the VHP, a major part of the activities of the VHP are channelized through temples. The Mahant of the Keval Jnanpith temple in Sarsa is a VHP representative of the VHP Gujarat faction. सारे संसार को ये हिंदू संस्कृति और संस्कार की जरूरत है, तो उसको मिटाने के लिए ये वैचारिक आक्रमण हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए हमें संगठित बनकर कोई प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो ये प्रयास का कार्य विश्व हिंदू परिषद का है, जिसमें सभी बातें आती हैं। पूरा कब्जा विश्व हिंदू परिषद ने कुछ सालों से ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद की यहाँ ट्रेनिंग चलती है, बजरंग दल की यहाँ ट्रेनिंग चलती है, लोगों को त्रिशूल बांटे जा रहे हैं, तलवार बांटे जा रही है। यानी हम हिंदुत्व का परिकल्पना जो भाजपा दे रही है आरएसएस, उसको सामाजिक तरीके से उसको कायम करना बड़ा ही असंभव बात हो जाती है। क्योंकि दैनिक जीवन में हमारी बहुत सारे जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, उसके अंदर बहुत तालमेल होता है। धार्मिक रूप से भी तालमेल है। आप पीरों की परंपरा लीजिए, आप भक्तियों का परंपरा, इन सभी चीज़ों के अंदर आदान प्रदान हुआ है। अब इसके अंदर आपको अगर विभाजन करना है तो वो हिंसा के बिना नहीं हो सकता है। वही आर्य है
जो दूसरे के दुख को दुख समझे, दूसरे के दुख को दुख समझे, दूसरे के सुख में सुखी रहे, दूसरे के दुख में दुखी होवे, मित्र का धर्म जो अपनावे। ये सबकी एकत्रित करो तो लाइफ की पर अटैक, प्रॉपर्टी पर अटैक, विमेन पर अटैक, रिलीजियस प्लेसेस पर अटैक, देन सारा इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म करने की एक व्यवस्था। क्योंकि पहला भी बॉयकॉट की बात होती थी, लेकिन दिस टाइम इन लोगों ने बराबर नक्की किया कि भाई आप कोई फिजिकली एनिहिलेट तो सारे मुस्लिम को नहीं कर सकेंगे, लेकिन इकोनॉमिकली काफ़ी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड दे हैव सक्सीडेड दिस टाइम। आप जो देख रहे हैं वो वहाँ सिलेंडर रख के फोड़ा है, वो स्लैब सारा उड़ा दिया है, सिलेंडर रख के तोड़ दिया। और ये सब वो ये खिड़की है, ये फ्रेम है, सब वो निकाल के ले गए लोग। गैस सिलेंडर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? कोई एक पेट्रोल से भी ज्वलनशील कोई पदार्थ था जो फेंकने से इतनी आग लगती थी और आप कुछ नहीं बचा पाते। तो ये सब तो पूर्व आयोजित है। Nar is another village in Gujarat where some of the Muslim families have been brought back by the Congress, the main opposition party in the parliament. हिंदू मुसलमान अलग समझते ही नहीं। मुसलमान भी अपने भाई है, हिंदू भी भाई है। हिंदू को काटोगे उंगली तो भी वही खून निकलेगा, मुसलमान को काटोगे तो भी वही खून निकलेगा। इसीलिए हम उसको यहीं समझौता करके लाए हैं। नार के मुसलमान की बात मत करिए आप। वहीं पे जो हुआ वो तो गोधरा में हुआ, वो उनका इन्फेक्शन इनको भुगतना पड़ा। वो मुझे मालूम है निर्दोष है, लेकिन हमारे लोग जो वो मर गए वो भी निर्दोष ही थे ना वहाँ पे। पहली बार ऐसा कोई सत्ता होगा जिसने वंश निकंदन के प्रक्रिया केवल किया ही नहीं है, मगर उसको पूरे देश के पैमाने पर बड़ी हिम्मत से इसको लेजिटिमेसी दी, इसको इसका एक आधार बनाया कि ये जो हमने किया वो ठीक था, वो सच था। दिस लेजिटिमेशन प्रोसेस जो हुआ है ये कभी भी पहले किसी सरकार ने नहीं किया। हिंदू संस्कृति में ये जो बातें हैं कि जीवो और सबको जीने दो, ये मेन मुख्य बात इसमें है। इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी बनता है कि ये जो हिंदुत्व का जो वैचारिक धारा है, इसको कार्यान्वित करने के लिए हिंसा की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंसा के आधार पर ही ये हम वंचितों को, ये शोषितों को हम लोग एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हिंदू धर्म में हिंसा लिखा ही नहीं है, हिंसा कहीं लिखा ही नहीं, हिंसा करना ही नहीं चाहिए। हिंसा है किसी को मारना, ये किसी को दुख पहुंचाना, ये भी एक हिंसा ही है। जो हिंसा करता है या समाज के लिए जो कोई ऐसा है कि जो समाज को नुकसान करता है, उसको हताहत करना, उसको हिंसा नहीं माना गया है। फिर ऐसा मत बोलना कि हम लोग गांव में आए और हमारे कोई कीमत नहीं की और हमें मार डाला और ये किया वो किया, वो हमें नहीं चाहिए। हमारे गांव में मुसलमान चाहिए ही नहीं। देश पर, धर्म पर जो कोई हत्या करना चाहता है, हैरान करना चाहता है, वो अगर हिंसा बनाता है, उसके हिंसा में, उसके प्रतिकार में जो हम लड़ते हैं, वो हिंसा नहीं है। इसलिए जब कभी भी एक समय आता है हिंसा की, उसके बाद दूसरा समय जब हिंसा की आती है तो उसकी तीव्रता, उसकी भयानकता और उसका व्यापकता और भी बड़ा होता है। और गुजरात का जो नरसंहार हम लोगों ने देखा है, उसका एक चरम सीमा तक पहुंचने की, कि छोटे मोटे दंगे से ये हम विभाजन कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमको राष्ट्र के तय, एक राज्य के तय के स्तर के ऊपर, सत्ता के ताकत के ऊपर हमें बड़े पैमाने पे इस चीज़ को कर पाएं, ताकि हो सकता है कि हम समाज के मोहल्ले में से, गांव में से उन तबकों को निकाल सके जो इस प्रक्रिया से अलग हो सकता है। In Oud, Anand district, 400 Muslims were driven out of their homes. गैर भरी क्यों लुटाई गए, वो पैरा भरे कपड़े आया, हमें कोई चीज़ हमारे जोड़े रहे थे नहीं, बिल्कुल हमें रोड ऊपर आइन बेसी गया, कोई चीज़ नहीं, दागिना बागिना घेर बेर बद्दू खलास थी गई। ओड से हम इधर रहने आए, अभी ओड में हमारा सब खलास कर डाला। ओड से किधर आया? बोरसद आए हम ने, पूरा सब खलास कर डाला, 40 जनों की मौत हुई। Some who have been allowed to come back are rebuilding their homes. Muslims who lost their homes lived for months together in relief camps. Some of them who were not allowed to go back or out of fear have shifted to bigger towns like Borsad and Anand.
Ghettoized, they live in pathetic conditions. In the campaign of misinformation against Muslims, this is one common accusation, the fact that they can marry 4 times and thus proliferate. नहीं, वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वो पॉपुलेशन है उसका, वो घटाना चाहिए और एक से ज़्यादा बीवी नहीं रख सकते वो। उसका एक ही कारण है, उसके मुसलमान के अंदर एक पुरुष और 4 भाई ऐसा रखता है, उससे पॉपुलेशन उसका ज़्यादा होता है। Another factor in the rise of the BJP in Gujarat is the support of a section of the Patel community. An upwardly mobile caste, a study of the 1999 parliamentary elections show that 89% of the Patels voted for the BJP. With Gujaratis spread out in 128 countries, a high percentage among them are Patels. There are also reports about a lot of non-resident Indian or NRI money coming in for the cause of Hindutva. पटेल कौम आगे आती गई, जो एक जमाने में बिल्कुल शोषित थी। यहाँ ज़्यादा पटेल की बस्ती होती है। पटेल की ज़्यादा हाँ नहीं, उनके बाद ठाकुर दरबार सब लोग आते। 80% पटेल है। यहाँ पर जो जितने भी घर हैं उसमें से एक व्यक्ति घर की एक व्यक्ति बाहर है। कोई अफ्रीका में है, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई ऑस्ट्रिया है। सभी देशों में हमारे गांव के लोग रहते हैं। जिसके पे FRI फटी है वो NRI आदमी था। वो NRI ने पैसा खर्च के सबको गैस के बोतल मंगवाए, पेट्रोल मंगवाया, सब मंगवाया, सबको पैसा दिया और वो बोतल भी पैसे के 25-30 नंग बोतल मंगवाए थे। उसने वो बाहर वाला वो रात वो तुरंत ही भाग गया। हाँ, NRI लोग भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये लोग भी तो ये भी तो हिंदू हैं, ये भी तो इस गांव के रहने वाले हैं। वो भी तो इसते हैं कि हम भी सपोर्ट करेंगे, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम लोग यहाँ पर भेजेंगे, आपको जितना चाहिए, लेकिन ये जो मुसलमान लोग हैं उसका डिस्ट्रॉय कर दो बस। हर समुदाय ये कोशिश करती है कि ऐसा कोई राजनीतिक पक्ष हो जिसको आधार बना के, जिसको इंस्ट्रूमेंट बना के, जिसको एक अस्त्र बना के वो सत्ता में ये कब्जा कर सके या सत्ता में उसकी एक नियंत्रण, सत्ता में उसका कंट्रोल रहे। Economically, Gujarat was one of the fastest growing states in India, but in the past 5 years, with the BJP in power, there has been a drastic downslide on all fronts. 1997-98 के बाद देखो तो गुजरात के विकास में बहुत ही कमी आई है। जो 11% पहले था वो अब 2% के आसपास रहा है। नहर में भी पानी नहीं आता है, नहर में पानी नहीं आता है। 4 साल से पानी इधर डांगर का पाक नहीं होता है, दुकान जैसी परिस्थिति हो गई है। अब गुजरात में देख लो 4 साल से अकाल है, माइग्रेशन रैम्पेंट है। मध्यम वर्ग क्या कर सकता है? और गवर्नमेंट पानी नहीं देती, ठीक है, बिजली पूरा नहीं देती, वो खेत में पाक आता है वो पूरा सूख जाता है। ये सब बहुत एक तरह का बहुत डीप फ्रस्ट्रेशन, एंगर पैदा कर रहा है। The social and gender indicators of the state show that its economic growth has not fully translated into human development. गुजरात में लड़कियां जन्मती है उसके पहले उनको मारा दिया जाता है और ये संख्या जब हमने देखा तो उन जिलों में ज़्यादा है जो जिले ज़्यादा प्रगतिशील है, जहां आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ है। स्त्रियों का स्थान हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा है। स्त्री जाति जो है वह हमारे में पूज्य है, तो इसलिए वायलेंस बढ़ रहा है, फैमिली में भी वायलेंस है। और आप गुजरात में देखें तो गुजरात तो देश में ऐसे अभी दूसरे नंबर पे आता है वायलेंस ऑन वुमेन पे। हर रोज़ के करीब 17 वुमेन 17 पर डे अननेचुरल डेथ, स्पेशली डाउरी डेथ्स, तो करीब 7,000 पर ईयर, हाईएस्ट नंबर इन गुजरात। नीचे कोई डेवलपमेंट नहीं आया, तो ये सब चारा सो कॉल्ड डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहा, लेकिन वो डेवलपमेंट के प्रोसेस के साथ में जो मेंटल चेंजेस आना चाहिए लाइफस्टाइल में वो आया नहीं। एंड जब कांग्रेस ने खुद थोड़ी भी आइडियोलॉजी चली गई
तो गुजरात में इतना पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया, वो पॉलिटिकल वैक्यूम इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर दिया है। तो रिजल्ट ये है कि गुजरात इज द ओनली प्लेस वेयर दिस फोर्सेस कैन डेवलप। In Gujarat, the total losses during the riots are estimated at anywhere from rupees 3,000 crores to rupees 10,000 crores. ये लोग जो भी ये बातें कर रहे हैं, उसके घर में रोटी है खाने के लिए, उसका घर है, उसके बच्चे अच्छी जगह में पढ़ रहे हैं। इसे जो बर्बाद हो रहे वो या हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सब गरीब लोग हैं। जब कौमी दंगे हुए तो जो विस्तार कर्फ्यू में रहा, कई विस्तार तो 5 हफ्ते के लिए 6 हफ्ते के लिए कर्फ्यू में रहे, संचार बंदी थी, लोग रोज़ी पर नहीं जा सकते थे। लेकिन ज़्यादातर समूह ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज कुछ मजदूरी मिली तो वो खा पाएंगे। पिछले 5 साल के अंदर इस पूरे इलाके के अंदर पूरे उद्योगों का खात्मा हो गया। टेक्सटाइल उद्योग सबसे बड़ा यहाँ का ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र था, वो पूरी तरीके से इस वैश्वीकरण के शर्तों के कारण, इस वैश्वीकरण के नियंत्रण के कारण वो सब टूटने लगी। यहाँ पे ग्रेजुएशन बहुत है लेकिन बेकारी यानी बेरोजगार लोग यहाँ पे बहुत घूम रहे हैं। को नौकरी मांगता है, मैं चलो 12 पास हूँ, मेरे को नौकरी देंगे आप? नहीं देते। नौकरी भी कहाँ देते हैं। और इस जिसे कहते हैं वैचारिक धारा विहीन जो पूर्व अहमदाबाद की जो पट्टी थी, उसके अंदर आगे आपको कोई आके ये कह दे कि भाई मुसलमान लोग दुश्मन है, मुसलमान लोग तुम्हारे नौकरी ले रहे हैं, उनके कारण से आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो ये बात आमतौर पे लोगों को स्वीकार करने में कोई बहुत बड़ी मुश्किल ही नहीं होती है। परेशानी बहुत है यहाँ एजुकेटेड लोग भी रहते हैं, एजुकेटेड लोग भी रहते हैं, इसको खाने के लिए सासा पड़ते हैं। इधर कौन बोलते हैं इधर कि मैं भूखा हूँ, इज्जत जाती है, जो बोलता है वही। इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बस सल्फोसी गोली लेके खा के सो जाना। Another feature was the participation of the Dalits or the lower castes in these riots. तो 81 के राइट्स में यही बीजेपी वाले लोग थे, हाँ यही मिनिस्टर थे जिन्होंने हिंसा करवाई थी दलित पे, बराबर। तब दलित के सामने तलवार लेके आए थे। आज ये तलवार दलित के हाथ में बोल रहे हैं कि आप जाके उसको मारो। हाँ पटेल हो गए, थोड़े से दूसरी भी कौम के लिए थी, काय को लिए ली थी। देखो तुमको देखो, गरीब दूसरे आदमी थे ना, उसने नहीं करने थे लोग, पढ़े लोगों को ऐसा जवाब दिया कि बोलो ये काम करो नहीं तो यहाँ से भागो। हम बोलते हैं कि दलित और मुस्लिम झगड़ रहे, क्यों झगड़ रहे? क्योंकि दोनों साथ में रहते हैं। मुस्लिम के सिवा दलित के साथ रहने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि बाकी लोग को अस्पृश्यता का माहौल खड़ा हो जाता है। ये नेक्सस आपको तोड़ना है तो आपको ये सोशल इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म को तोड़ना पड़ेगा। दलित को मुस्लिम के खिलाफ करना पड़ेगा, ट्राइबल को क्रिश्चियन के खिलाफ करना पड़ेगा, और हिंदुत्व का आपको नाम देना पड़ेगा। तो हिंदूज का तो यही एडवांटेज है इधर कि हमारा ये जो वर्ग है इधर, वो नॉर्मल संजोगों में इन लोगों को हिंदू गिनते नहीं है, दलित, आदिवासी, ओबीसी को। राइट्स में वो हिंदू गिनते हैं और वो उसको मारते हैं तो कहीं हमको मारा, एंड लड़ने के लिए यूज करते हैं। हिंदू शब्द जो है वो फारसी है, हमारी भारतीय संस्कृति की लफ्ज़ ये नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें हिंदू के सिवा और किसी को रहने का अधिकार नहीं है, ऐसी हिंदू राष्ट्र की कोई मान्यता नहीं है, या अन्य कोई ज्ञाति, जाति या धर्म के लोगों को उत्पीड़न किया जाए या उनकी स्वतंत्रता को रौंद दिया जाए, उनकी विचारधारा को नष्ट किया जाए, वैसे हिंदू राष्ट्र की परंपरा नहीं है। जियो और जीने दो, उस बात पर हिंदू राष्ट्र की परंपरा खड़ी होगी। हिंदुज़म जो है उसको वो भी बड़ा उसको एक धर्म के रूप में देखेंगे तो उसके बहुत सारे पहलू है। उसमें तरह तरह के परंपराएं, तरह तरह के सेक्ट्स, तरह तरह के संप्रदायों के वो एक संमिश्रण है। तो वो सभी के अंदर एकता, समानता है ऐसी तो है नहीं। तो उस असमानताओं के बीच में से एक समानता खड़ा करना, जिसके अंदर धार्मिक रूप से हम सब एक हो जाए मगर सामाजिक रूप से समानता रहे,
ये हिंदुत्व का स्वरूप है। विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए मंदिर है, उनकी धर्म संसद वो अक्सर गुजरात में होती रहती है और वो लोग ऐसा मानता है कि एक धर्म संसद का ही प्रभाव होना चाहिए। लोकशाही में संसद की भी ज़रूरत नहीं, धर्म संसद है, जो हम लोग हैं वही शासन चलाए, ऐसा वो मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो एक सरखा नियम होना चाहिए और इसी के अनुसार संसार को चलना चाहिए। हमारे देश का संविधान जो है उसमें बहुत ही, अगर आप उसके परंपरा से उसके तुलना करेंगे, बहुत ही रेडिकल यानी बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम उसमें मुद्दा लाया गया वैचारिक रूप से, और वो ये है कि वंशज के आधार पर, परंपरा के आधार पर राज शक्ति कायम नहीं हो सकती है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट प्रीसपोजेस कि इट इज़ अ फुल्ली रिपब्लिक वेयर ऑल हैव इक्वल राइट्स एंड वेयर कोई एक कम्युनिटी, कास्ट के रिलीजन पर इसका कोई प्रेफरेंस नहीं रहेगा। वो बेसिस तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस है। आम साधु संत जिस तरीके से इस चीज़ को जिस तरीके से समाज में राजकीय प्रक्रिया को देखते हैं, वो उनकी एक परंपरागत जो मनुस्मृति के आधार पे जो एक विचार बनी है, उसी के आधार से, उसी दृष्टिकोण से वो समाज के राजनीतिक पहलू को देखते हैं। और बीजेपी या आरएसएस की चिंतन है वो उससे कोई अलग नहीं है। मनुस्मृति हमारी आदि स्मृति है। सबसे पहले स्मृतियाँ जो बनी, स्मृति में सबसे पहले मनुस्मृति बनी। मनुस्मृति में जो लिखा है उस प्रकार से अगर हम चलें तो आज नहीं, कल नहीं, हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष, अब्जों वर्ष बीत जाएगा, अरबों वर्ष बीत जाए, फिर भी हम दुखी नहीं होंगे। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार चलना ही चाहिए फर्जियात। तो हिंदूज का कोई फंडामेंटल्स है ही नहीं। फंडामेंटलिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बिकॉज फंडामेंटलिज्म मीन्स कि यू वांट टू गो टू बैक टू द ओरिजिनल। बट व्हाट ओरिजिनल? जो हिंदूज का बेस्ट फीचर लोग गिनते हैं उसकी फिलॉसफी, वो तो इतनी हाईली स्पेक्युलेटिव है आत्मा परमात्मा की, जो डे टू डे लाइफ में तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। मनुस्मृति यानी क्या? मनुस्मृति वापस लाने का यानी क्या? मनुस्मृति में तो ऐसा लिखा है कि अगर कोई दलित गलती से भी वेद का नाम सुन लेते हैं तो उसके कान में शीशा डाल दो आप, या गलती से वो बोल देता है भगवान का नाम तो उसकी जीभ काट दो आप। तो जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो ऑटोमेटिकली इट इम्प्लाइज, क्योंकि उसका ही तो एक्सप्लिसिट पर्पस है कि हिंदू रिलीजन वाले, कि हिंदू में मानने वाले एक डोमिनेंट सेक्शन रहेगा, सो इम्प्लिसिट इनइक्वालिटी आ जाएगी। इसको रिपब्लिक आप नहीं कह सकते, डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी इम्प्लाइज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जहाँ परमानेंट मेजोरिटी से परमानेंट माइनॉरिटी नहीं हो सकती है। ऋषि महर्षियों के नियम के अनुसार ही चलना चाहिए, कोई भी धर्म के विपरीत नहीं चलना चाहिए। अगर आरएसएस के चिंतन को आप देखेंगे तो वो बड़ा साफ कहती है कि हमें ऐसा बंधारण नहीं चाहिए, हमें तो गुरु परंपरा से खड़ी हुई ऐसा एक गुरु चाहिए, या ऐसा एक देश का हमारा, जैसे घर में हमारे पिताजी होते हैं, ऐसा एक हमारे समाज का एक ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जिसको हम चुने नहीं, पर जिसको हम भरोसा करें कि वो हमारे देश को ठीक से चलेगा। यहाँ की परंपरा रही है कि राष्ट्र जो भी राजा थे इधर के, उनके पर धर्माचार्य थे और इनका उन पर प्रभाव रहता था। हम तो ऐसा चाहते हैं कि उसमें अच्छे राष्ट्रभक्त मुस्लिम जो है, उनके धर्मगुरु है, उनको भी मिलाया जाए। जीवन परंपरा है, एक आध्यात्मिक परंपरा है, तो इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए आप देखिए कि हमारे यहाँ कि भी किसी एक विस्तार में यहाँ ज़्यादा शेर रखते हैं, यहाँ एलिफेंट्स रखते हैं, यहाँ ज़्यादा हरण रखते हैं, तो उसको सुरक्षित करने के लिए जब हम उसके लिए अभ्यारण्य बनाते हैं कि भाई ये यहाँ पले फूले, तो सीधी बात है कि ये संस्कृति को भी पलने के लिए, फूलने के लिए, विकसित होने के लिए अपना स्थान होना चाहिए। इसलिए मैं हिंदू राष्ट्र की तरफदारी करता हूँ। ये फाइट है वेदर यू वांट टू स्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन और you want to have another reason
what we call Hindu vision, which cannot be brought within the framework of this constitution. So जो constitution रखना है तो हिंदू philosophy नहीं आ सकती है, हिंदुइज्म लाना है तो ये constitution नहीं रहेगा. सभी लोगों को समान दर्जा देना चाहिए और सभी लोगों को सर्वधर्म समभाव की तरह ही चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. हिंदू राष्ट्र में मैं मानूं तो हिंदू राष्ट्र में हिंदू ही होना चाहिए, मुसलमान को नहीं. उसका भी स्टेट मानो कि मुस्लिम को निकाल दिया तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इफ ऑल मुस्लिम्स गो अवे फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया और इफ ऑल मुस्लिम्स बिकम हिंदूज, ये बीजेपी और वीएचपी को कितने हिंदू को मुस्लिम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम होंगे तो हिंदू होंगे, मुस्लिम नहीं होंगे तो हिंदू कहाँ से लाएंगे, कहाँ है वेर आर हिंदूज. वो दलितों की सिर्फ बातें करती है, राजकारण है. वो वोट लेने के लिए वो बातें करते हैं हर जगह पर, हर राजकारण में. बाकी दलितों को कोई स्थान नहीं देते. मेरे ख्याल से तो एक दिन ऐसी क्रांति है कि दलित जब उनके साथ लड़ेंगे तभी उसका फैसला होगा, इसके सिवा कभी नहीं होगा. तो अल्टीमेटली आएगा क्या, कास्ट स्ट्रक्चर आएगा, एक या दूसरे फॉर्म में अनटचेबिलिटी आएगा, एक या दूसरे फॉर्म में स्त्री सती है न सती पार्वती है न ये है, वो कंसेप्ट आएगा, पैटर्नलिज्म आ जाएगा, ये पैट्रियार्किकल सिस्टम आएगी. लोकशाहीकरण का जो प्रक्रिया चल रहा है जिससे लोगों को आस्ते आस्ते एक अधिकार के मिल रहा है और उस अधिकार को के ताकत पर समाज में परिवर्तन की इच्छा रखता है, इस चीज को रोकने के लिए आज ऐसा एक दल की, ऐसा एक राजनीति की जरूरत है जो इसके अंदर एक प्रतिक्रांति कर सकता है, इस लोकशाही के खिलाफ एक नैतिक आधार बना सकता है, एक संगठन बना सकता है जो इसको कायम करे और एक सत्ता बना सके जो इस चीज को अमल कर सके. और ये तीनों ही चीज पहलू बीजेपी के अंदर है और इसीलिए बीजेपी एक फासिस्ट के रूप में खड़ा हुआ है और फासिस्ट के रूप में हमारे देश के लोकशाही तंत्र के विकल्प में खड़ा हुआ है. तो ये सारा जो कंसेप्ट बना रहे हैं वो हेट्रेड एंड इनटॉलरेंस पर बना रहे हैं. उसकी पॉजिटिव कंटेंट उसके पास कुछ है नहीं, उसके पास कुछ आइडियोलॉजी नहीं है, सोशल ऑर्डर का उसके पास कोई कंसेप्ट नहीं है, इकोनॉमिक कंसेप्ट उसके पास नहीं है. तो आप कॉन्ट्राडिक्शन देख ही सकते हैं उसकी क्या पॉलिसी है, ग्लोबलाइजेशन, स्वदेशी एटसेट्रा एटसेट्रा. मैंने खुद विश्व हिंदू परिषद को बोला था कि दलित हिंदू है और मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ. आप दलितों के मंदिर प्रवेश की अगवानी करो. वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं. In India, the caste system, which was in place since the first 2 centuries AD, is still widespread. वास्तविक हम एक ही पिता के सब कुमार हैं. जैसे यजुर्वेद में कहा गया ब्राह्मणों से मुख मासीद, ब्राह्मण का जन्म मुख से है. बाहुराजन्य, बाह से भुजा से राजाओं का जन्म है, राजपुत्रों का जन्म है. उरुतदस्य वैश्य, पेट से जंघा से वैश्यों का जन्म है. और पदभ्याम शूद्रो अजायतः, पैर से शूद्रों का जन्म है. कोई भी दलित को जाके गांव में पूछे, आराम से बैठ के ऐसे बात करो कि आपको एक चीज़ मिले जिंदगी में, भगवान आए बोले आप मांगो तो क्या मांगोगे, तो ये बोलेंगे कि हमें ये लार्जर हिंदू सोसाइटी है उससे हमें स्वीकृति चाहिए. 3000 साल से आपके गांव में घर अलग है, आपका पानी का कुआं अलग है, आपका सेमेट्री अलग है, आपके बच्चे स्कूल में अलग बिठाते हैं, स्कैवेंजिंग का आप काम करते हैं, गंदा जो काम माना जाता है वो सब आपके उसमें है. हमें किसी के बिना चलने वाला नहीं है. ये शरीर है, ये ब्राह्मण का भाग है सिर, बाँह का भाग क्षत्रिय का है, पेट का भाग शूद्र का है और पैर का भाग पेट का भाग वैश्य का है और पैर का भाग शूद्र का है. अगर हम पैर काट देते हैं तो ये शरीर चलेगा. हिंदू धर्म में पहले से ही 4 वर्ण है और वो बनाने वाले चुस्त ब्राह्मण लोग हैं. ब्राह्मण लोग ने हर धर्म में, हिंदू धर्म में अपना किया, अपना सोचा, अपने लाभ के लिए सब तिथि त्यौहार बना दिए, सब वर्ण बना दिए और इस वर्ण में दलितों को शूद्र बना दिया कि भाई शूद्र हमारे पैर की जूती है. ऐसा नहीं है आजकल कि आप लोगों को ज़्यादा समय तक उल्लू बना सकता.
आज गरीब लोग भी समझ रहे हैं किसमें क्या है, वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि उसकी खुद की ताकत बहुत कम है, उसकी नेगोशिएटिंग पावर बहुत कम है। जो अभी हम जहाँ हैं वहीं पे है। कोई कांग्रेस था तब भी हमको कोई किसी ने ऊंचे नहीं बिठाया, या भाजपा ने भी हमको कभी ऊंचे नहीं बिठाया। जिस जगह पे हम हैं वहीं के वहीं है। गुजरात एक ऐसा राज्य भी है जो जहाँ दलितों पर हिंसा का सवाल है, वो देश में उसका चौथा क्रम आता है, इस फोर्थ। हाँ, हम हिंदू है, वो हम गौरव से भी कहते हैं कि हम हिंदू है, लेकिन जो वो लोग जो है वो सिर्फ नाम के हिंदू बनाते हैं हमको, सिर्फ वोट लेने के लिए, काम करते नहीं हमारा कुछ। अब दलित का सिचुएशन देखो, 78% लोग मजदूर है, सिर्फ 8 या 10% के लोग के पास जमीन है खेती का, और एवरेज लैंड होल्डिंग इज लेस देन 1 हेक्टर। ये एक ऐसा हिंदुत्व एक ऐसा एक प्रक्रिया है जो राष्ट्र निर्माण का प्रक्रिया है, मगर जिसके अंदर समानता की कोई जगह नहीं होने वाली है। और इसलिए वो समानता की जगह को अगर नहीं रखना है तो ऐसा एक समुदाय और ऐसा एक राष्ट्र निर्माण के हिस्से को आपको अधिकार से वंचित करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ग्रेडेड इनइक्वालिटी का तभी टिक सकता है जब उसमें से एक अंश ऐसा हो जिसको कि कोई अधिकार नहीं हो, जिसे हम पंचम वर्ग कहते थे। तो आधुनिक पुराने समाज में दलित उसका पंचम वर्ग हुआ करता था, पर आधुनिकता के अंदर वही परंपरा फिर से आधुनिक रूप में राष्ट्र निर्माण के नाम पर हिंदुत्व का स्वरूप दे रहा है, मगर उसका पंचम वर्ग अभी मुसलमान समुदाय यहाँ से होने वाला है, यहाँ का क्रिश्चियन समुदाय होने वाला है। और जब वो समुदाय रहने वाला है तो वो जो इनइक्वल ग्रेडेड जो होता था, इनइक्वालिटी जो था, वो इनइक्वालिटी ग्रेडेड फिर से कायम रहने वाला है। मगर दलित समुदाय को, पिछड़ा समुदाय को लगेगा कि मैं भी कुछ आगे आ गया हूँ क्योंकि मेरे से नीचे कोई समुदाय आ गया है। हिंदुत्व यानी क्या? बेसिकली इट इज कास्ट सिस्टम। तो ये कोई सोशल चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक कास्ट डिसाइड करता है कि इसके पास क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म कैसा होना चाहिए, वेजेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सब इज डिसाइडेड बाय द कास्ट स्टेटस। और आरएसएस का चिंतन से जो संविधान का निर्माण हो सकता है उसमें अंदर एकदम जमीन और आसमान का फर्क है। एक परंपरा से लैस है और एक परंपरा में एक नई चेतना लाने का, एक परंपरा को छोड़कर एक आधुनिकता के नई चिंतन धारा लाने का, जिसके अंदर हर नागरिक को अपना अधिकार है, हर नागरिक अपनी नागरिकता का सम्मान ले सकता है। मैं तो कभी मशकरे में कहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो यू डिक्लेयर इंडिया एज अ हिंदू स्टेट, बट नेक्स्ट डे यू विल हैव टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम्स, द पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। और इसीलिए मेरा मानना है कि इनकी कितनी भी कोशिश हो, हिंदुत्व इस देश में कभी भी पनपने वाला नहीं है, क्योंकि जो आम शोषित समाज है, आम वंचित समाज है, उसके आदान प्रदान, उसके सामाजिक संबंध इतने हैं कि उसको वो इस चीज़ का स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए राष्ट्र निर्माण के अंदर हिंदुत्व की बात तो जरूर भयानक रूप से दिख रही है, मगर इसके खिलाफ भी एक ऐसा ही राष्ट्रवाद जिसके अंदर समानता हो, जिसके अंदर लोगों के अंदर एक और भी एकता का स्वरूप है, एक दूसरे के बीच में सम्मान देने की जो समझ है, एक दूसरे को टॉलरेंस यानी उसको एक दूसरे को जगह देने की जो बात है, वो सब के प्रक्रिया से ये चीज़ के अंदर बदलाव आने वाली है। Napa in Anand district remained an island of peace and calm even as its surrounding villages burnt during the post-Godhra days. किसी कौम में किसी जात का भेदभाव नहीं, नहीं कौमी भेदभाव है, नहीं कौमी तनाव है, सब लोग एक बन कर रहते हैं। इसलिए जो कि इस गांव की ज़्यादातर बस्ती मुस्लिम है, फिर भी मुस्लिम लोग उदार रहते हैं और हिंदू कौम को कोई जात का नुकसान नहीं पहुंचाती है। सब लोग जहां भी जाओगे वहां खुशी का संदेश आपको मिलेगा इस गांव के लिए। हमारी एकता है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। यूँ ये नापा के लिए शांति का अमन चमन है, पूरे गुजरात के नामचीन है, और पहले से इसकी छाप ऐसी है कि सब एक ही रहते, कोई कौम का तासुब वाली कोई बात है ही नहीं। इधर जो भी चाहे कोई भी आया तो दूध में साकर की तरह मिल जाता है। खून का रंग एक ही होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, पर उनका खून तो एक ही होता है और सबका मालिक एक होता है। राजनेताओं को इस तरह से दंगा फिसाद नहीं करवाना चाहिए। काम करके तुम्हारा हिसाब से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तो इस बात को मैं मानता हूँ। गांव वालों ने मिलकर गांव का चारों ओर को रक्षण करते थे,
और किसी की ऐसी हिम्मत नहीं कि इस गांव में आ सके। राजनीति के अंदर जो महान नेता थे उसने देश के लिए भोग दिया है। आजकल के नेता कोई देने वाले नहीं, आजकल के नेता पैसा बनाने वाले हैं, उनकी सीट संभालने वाले हैं और प्रजा के अंदर दंगा फिसाद धर्म के बारे में करवाने वाले हैं। अब यहाँ पूरी कौम है, सभी कौम है, लेकिन सब मिलजुल के रहती है, यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं। अब ये पूरा जो हुआ 3 महीने हिंदू मुस्लिम का कौमी, लेकिन यहाँ सब मिल के पूरी रात घूमते थे, यानी पेट्रोलिंग करते थे पूरे गांव वाले। और हमारे लोगों का इरादा यही था कि बाहर वाले अगर हिंदू हो या मुसलमान हो, पूरा गांव मिलके उसका सामना करे। इसलिए यहाँ कोई आया नहीं हमारे सामने, यानी कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई आने की, क्योंकि अगर कोई बाहर का आएगा तो हमारे गांव का ही नुकसान होगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन वो हमारे भाई को ही मारेगा ना। इसलिए पूरे लोग मिल के घूमते थे। तो यही सबक पूरे हिंदुस्तान को लेना चाहिए। If this does happen, it will mean the end of a composite culture which has been built over the centuries, where once there coexisted many languages, many religions, many customs, many rituals to become one nation, where once there existed a mirror to reflect this wholeness, tomorrow will turn into the fragments of a lost civilization. On the earth was sown hatred. We ploughed it. It rained blood that year. The harvest was good. We got the votes. We are in power. How many more such harvests do we have to reap?